starting with the first thing, Hmm. website chatbot. It is possible. People who are using your, like people who are landing on your website, they get both the options. One option to initiate a chat, where they can pop up by the how may I help you, right? So they can go ahead and initiate a chatbot using website chat, or they can click on the WhatsApp button to initiate a WhatsApp chat. थर्ड पार्ट इज व्हाट्सएप बॉट का जो आप कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं, if I scan some QR code, it should redirect me to what, right? And from there, again, a same bot starts, and thereby all the taking all the necessary information, a ticket should be created. So first two use cases are very, very, doable. Uh, Calling via a platform which integrates or which connects with third party platforms, right? So if you have any platform in place, like I'll give you a few names like Exotel, Emio, Tata SmartFlow, right? So those systems, if they are SIP based systems, we can go ahead and connect. But something that you are looking out for, that we can create a ticket using IVRs, right? If you are not satisfied with the services, please click one. And then, basis of that particular input, a ticket will be created for that particular customer. But in case you want someone to sit on the call physically and then talk to the customer and then create a ticket, that is something which is also possible. So here I'm not sure about how many users are going to be, on your calling side, who will be taking, your customer's call. I'm telling you, So you can just give only me an one estimate. customer care executive we have as of now. Okay. Yeah. So Okay. ठीक है, तो फिर taking a SIP system would be from my side, it will be a economical option, because plan only starts at 10,000 एक्सेप्ट कर rupees दो सर ये इसको for सुप्रिया को specifically for calling part. Because if you want to connect any system to this particular thing, the system has its requirements. और उस कॉन्फ़िगरेशन का सिस्टम आपको लाने के लिए पर मंथ के चार्जेस जो है रुपीज किसी थर्ड पार्टी को पे करना पड़ेंगे, कितना रुपीस राइट? बोला आपने अभी? तो अभी के लिए, सॉरी, कितना रुपीस बोला आपने पर मंथ? पर मंथ आप मिनिमम मान के चलिए 10,000 रुपीज। जैसे हम काम करते हैं ऑलरेडी, हमारा पार्टनर है टाटा, ओके। तो आगे चल के जैसे मान लीजिए अभी आपके पास एक एग्जीक्यूटिव है, हाँ। जो कस्टमर क्वेरी संभालता है ओवर कॉल। आगे चल के मान लीजिए आपके 10 यूजर हो जाते हैं जी। जो कस्टमर क्वेरी संभाल रहे हैं। यस यस। It is not only customer queries, but also with regards to the model that you are selling, to maybe hotels, hospitals, ओके। or some different मतलब buildings. एनी तो कस्टमर किसी भी क्वेरी। टाइप की इंक्वायरी के लिए आपके पास बंदे हैं जो कि सेल्स भी संभाल रहे हैं, सपोर्ट भी संभाल रहे हैं। जी। तो उसके अंदर आप एक यूजर से लेकर 10 यूजर कितना भी यूज करो, आप बिलिंग जो है 10,000 आता है। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, तो ठीक है वो। मैं आपको पूरा चला के दिखाऊंगा। प्रतीक ने मुझे अभी बताया कि आपने प्लेटफॉर्म देखा ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल बेनिफिशियल फॉर यू इफ यू सी द प्लेटफॉर्म। किसी के भी वेबसाइट पे अगर आपने इम्प्लीमेंट किया होगा तो उसका फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों दिखा दो आप, ताकि मेरा कस्टमर केयर भी कैसे वो टिकट्स रेज होंगे बैक एंड में, वो स्कोर कैसे दिखेगा। दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। ठीक है, सो यू ठीक है, मैं आपको चला के दिखाऊंगा। ठीक है, ओके। ठीक है। एंड लास्ट थिंग दैट वी डिस्कस्ड वाज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो अगर फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कोई कमेंट कर रहा है आपके पेज पे, हैशटैग लगा के ऑटोमेटिकली उसके टिकट आते हैं जी, हैशटैग वगैरह लगा। हैशटैग नहीं होता है, आपके अच्छा। पेज पे या फिर आपके पोस्ट पे आना चाहिए। अच्छा, ठीक है, डन, ओके। ठीक है। और अगर वो आपको डीएम करते हैं, डायरेक्ट मैसेज करते हैं, तो उसके भी टिकट्स बन जाते हैं। ठीक है। के जो बॉट्स है वो वेबसाइट का बॉट चलेगा, उसके बाद व्हाट्सएप का बॉट चलेगा, फेसबुक का बॉट चलेगा और इंस्टाग्राम का बॉट चलेगा। विजिबल। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द मोमेंट यू लॉग इन टू द प्लेटफॉर्म, ईमेल आईडी पासवर्ड बेस्ड लॉगिन रहेगा। ये आपका यूजर लॉगिन रहेगा, मतलब जो भी आपका कस्टमर सर्विस एजेंट है वो लॉगिन करेगा इस पे। ओके। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपको ये विंडो दिखती है।
बड़ा कैसे करना है? right? नीचे इस पे जाओ, Which shows your open pending resolved cases, your task, your online chats, ये है ना, ये बड़ा your recent cases, देखो नीचे, ये लो। broadcast materials and knowledge materials. Should we move ahead, sir? Just a moment. We are trying to maximize the screen. तो सबसे पहले आप जैसे लॉग इन करते हैं तो आपको आपका एक लैंडिंग पेज दिखता है जिसके ऊपर ओपन पेंडिंग रिजॉल्व केसेस, आपके टास्क, ऑनलाइन चैट्स, ठीक है, रिसेंट केसेस, कंपनी वाइड ब्रॉडकास्ट, नॉलेज मटेरियल्स, एफएक्यूज, पॉलिसीज, ये सब आपको यहीं दिखती है। ठीक है। इसमें मेजर इंपॉर्टेंट जो है वो माय केसेस होता है, ओके। जिसपे आपको होलिस्टिक व्यू मिल जाता है। लेकिन आपको जो काम होता है ये वाली विंडो में होता है, विच इज कॉल्ड केस विंडो, ओके, राइट। अभी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और राइट हैंड साइड पे जाऊंगा। सो लेफ्ट हैंड साइड पे आप जितने भी सिंबल्स देख रहे हैं, these are the channels with which we integrate. ओके। तो आपका ईमेल, फोन कॉल, सोशल मीडिया, फॉर्म्स, सेल्फ सर्विस पोर्टल, चैटबॉट्स, सारी चीजें हम इंटीग्रेट करते हैं। दिस इज ऑल इनबॉक्स। तो जैसे जीमेल हमारे पास मोबाइल फोन में 3-4 जीमेल एक साथ आईडी लगी रहती है, हम ऑल इनबॉक्सेस करते तो सारी आईडी इसके मैसेज दिखाता है, और अगर किसी एक एक आईडी पे हमको जाना है तो हम नीचे सिलेक्ट करते हैं, सिमिलर टू दैट, राइट। ओके। देन ये जितने भी सर्कल के बीच में आपको साइंस दिख रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं टिकट्स कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं। ठीक है। सो ये वाला किस इंस्टाग्राम का है, फेसबुक का है, ईमेल का है, चैट का है, Okay. राइट। और अभी हम जब बात कर रहे हैं तो आई विल ऑल्सो यू नो शेयर, 1 सेकेंड, S11, राइट, ओके। तो एक मैंने ईमेल बना के रखा है, मैं ईमेल भेज देता हूँ मेरा नेक्स्ट चीज समझाने के लिए। ये मैंने भेज दिया है, ठीक है। सो अभी जो भी केस जहां से भी ओरिजिनेट हो रहा है वो तो यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद प्रायोरिटीज सेट होती है, हाई, लो, अर्जेंट, मीडियम, ये सारी चीजें, और ये सारी की सारी चीजें ऑटोमेशन के थ्रू होती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई में एक होटल है जहाँ पे मेरी जो लॉन्ड्री सर्विसेज है वहाँ के कस्टमर बहुत ज्यादा प्रीमियम है मेरे लिए। तो अगर वहाँ कोई भी टिकट ओरिजिनेट होता है या कुछ भी केस आइडेंटिफाई कर पाता है कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से कि टिकट वहां से आया है, तो दैट पर्टिकुलर टिकट शुड बी ट्रीटेड ऑन प्रायोरिटी, और उसका एसएलए टाइम जो है 15 मिनट का ही होना चाहिए। सो ये सारी चीजें आप उसमें सेट कर सकते हो, जस्ट टू मेक श्योर यू आर फर्स्ट ऑफ ऑल not missing on any inquiry, one. Second, you are satisfying everyone with respect to the resolution time. Okay. In मिनट का टाइम, 1 घंटे का टाइम, 24 आवर्स का टाइम, जो भी आपका एसएलए वो एक्सीड हो जाता है, सो ये जो आपको दिख रहा है रेड हो जाता है टिकट, राइट, और प्रायोरिटी इसकी हाई सेट हो जाती है। अब यहाँ पे आपको 4 केसेस दिख रहे हैं, राइट। कोई भी नया केस अगर सिस्टम में आता है तो ये जो पर्टिकुलर बटन है ये रेड टर्न हो जाता है। अगर मैं इसी विंडो पे हूँ तो मुझे यहाँ जाके इसको सॉफ्ट रिफ्रेश करना पड़ेगा, मुझे विंडो रिफ्रेश नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर मैं इधर जाके विंडो स्विच हो जाती है, किसी केस के अंदर जाके बाहर आ जाता हूँ, तो ऑटोमेटिक केस आ जाएगा वहां पे। सो अभी के लिए मैं इसे सिर्फ रिफ्रेश करता हूँ। सो ये केस आ गया है। अब ये केस आप देखिए, मैंने केस ओपन नहीं करा है, 48 मिनट्स का एसएलए लग, 100 मैसेज है, जीमेल से भेजा था, इस ईमेल आया है यहाँ पे, किसने भेजा है, वेंकट रमन ने भेज दिया है, उसका सब्जेक्ट लाइन डैमेज्ड आइटम रिसीव्ड, टैग लगा दिया है उसके ऊपर डैमेज्ड आइटम का, ठीक है। ये ऑटोमेटिक कैटेगराइज हो गया है रिफंड एंड रिटर्न कैटेगरी को, और ऑर्डर प्रोसेसिंग टीम को ये वाला टिकट अलॉट हो गया है। तो आपका मल्टीपल केसेस कमिंग फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस, लेट्स से अभी मान लीजिए आपको 200 इंक्वायरी रोज की ईमेल पे ही आ रही है, 100 इंक्वायरी है लेट डिलीवरी की, और 100 इंक्वायरी है स्टेन्स की, और 50 इंक्वायरी है नॉट सप्लाइड, राइट। अब सबसे पहले आपका टाइम वेस्ट होगा कहाँ पे, टिकट को ओपन करके बकेट करने में कि कौन सा कैटेगरी का कौन सा टिकट है, ऑटोमेटिकली बकेटिंग हो जाएगी। करेक्ट। उसके बाद क्योंकि अभी तो आपके पास एक कस्टमर सर्विस एजेंट है, मान लीजिए आपके पास 5 हो जाएगी आगे चल के, तो कौन सा बंदा किस पर्टिकुलर टिकट पे काम करेगा, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है।
राइट। और उसके आगे बहुत सारी चीजें रहती है जो कि आप समझ पा रहे हैं मैं कहाँ का लिंक करना चाहता हूँ। अभी ये टिकट आ गया, अगर रिजॉल्व हो गया तो कैसे इसको रिजॉल्व करते हैं? हाँ, तो जैसे इस पर्टिकुलर चीज को ओपन करता हूँ, राइट, तो ये जो हाफ विंडो है ये तो मेरा पीछे वाला विंडो है जो मैंने आपको दिखाया था जी। कस्टमर ने मुझे जो मैसेज करा है वो यहाँ बीच में दिखेगा। ठीक है। मुझे जो भी प्रोसेस से रिलेटेड फॉर्म भरना है वो मैं राइट साइड पे भरता हूँ। ठीक है। अभी मान लीजिए कस्टमर ने लिखा है मुझे एडवाइस करो नेक्स्ट स्टेप पे, तो हम ईमेल में क्या करते हैं, हम नॉर्मली रिप्लाई करते हैं, ईमेल लिखते हैं और फिर भेजते हैं, राइट जी। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ क्लिक आपका ईमेल रेडी, ये सारी चीजें रेडी और आपको क्लिक करना है रिप्लाई। ओके। ठीक है। एक चीज ये होती है आपके केस में बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट नोशन का यूज केस नहीं होगा, इसलिए प्रतीक ने मुझे बताया था कि आप अदरवाइज किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस को सॉल्व करने की एक स्टेप रहती है। तो मान लीजिए कस्टमर ने बोला कि यहाँ पे मुझे जो मिला है वो डैमेज आइटम मिला है। अब ई कॉमर्स कंपनीज में क्या होता है, डैमेज आइटम जो रहता है उसकी प्रोसेस अलग रहती है, प्रोडक्ट रिफंड करने की प्रोसेस अलग रहती है। हाँ। और मल्टीपल चीजों की प्रोसेस अलग रहती है। तो हम वो प्रोसेसेस को डिफाइन कर लेते हैं। हाँ। हम उन प्रोसेसेस को बना लेते हैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में, ताकि आपके पास आज की तारीख में 200 लोग हो, सब लोग एक ही प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, कोई भी बंदा या बंदी अपनी मन मर्जी से प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। एंड दे आर मेकिंग श्योर व्हाटएवर स्टेप दे आर फॉलोइंग इज are being followed as per the company standard. Okay? So ये चीज यूज होती है BPMN में, बट इसका आपको यूज नहीं है। Your communication is like more of a generic communication. जी. So ये आपको buttons मिल जाएंगे which is called smart canned responses. यहाँ पे 2 या 3 मिलते हैं, बट मान लीजिए आपका 20 responses ready में करते हो कि हमें पता है हमारे पास किस टाइप की इंक्वायरीज आती है, जी जी, उसको किस टाइप से रिप्लाई करना है, तो आप ये वाला जो गल्फ का बटन है इस पे आप क्लिक करेंगे। हाँ। तो यहाँ सारे लाइन से आपको सारे के सारे वो सब मिल जाएंगे। उसके साथ में आप चाहते हैं कि मैं ईमेल तो लिखूं, ईमेल के साथ में मैं पॉलिसी पे अटैच करके भेज दूं, तो आपको बार बार सी ड्राइव डी ड्राइव में जाके वो डॉक्यूमेंट सर्च करके अटैच करने की जरूरत नहीं है। आपने एक रेडीमेड रिस्पॉन्स क्रिएट करके रख दिया, विद अ क्लिक ऑफ अ बटन the person will be able to enter this particular email with a response, and on a click of a button he'll be able to send it. एक बार ईमेल सेंड हो गया, कस्टमर से रिप्लाई आ गया, and once he is satisfied, you solve the tickets in 3 different ways. पहले एक काम करते, पहले हम एक रिप्लाई कर देते हैं। ये सॉरी मैंने एक रिप्लाई कर दिया है, ठीक है, एक रिप्लाई चल गया, राइट। अब कस्टमर उधर से रिप्लाई करेगा, राइट, और जो भी होगा आपका मान लीजिए प्रोसेस आपकी सॉल्व हो। तो ये जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने जहाँ से जो ईमेल भेजा है, ये ईमेल आ गया है, डैमेज आइटम रिसीव रिफंड पॉलिसी, ठीक है, राइट। अब मैं वापस जाता हूँ केस पे, और यहाँ से मान लीजिए अब सारे मैसेजेस हो गए। अब मैं टिकट को 3 टाइप से रिजॉल्व कर सकता हूँ, या पर्टिकुलर बटन पर क्लिक कर दूँ, रिजॉल्व, ठीक है, या तो मैं यहाँ जाके यहाँ पे एक आपको बटन मिलता है मार्केट एज रिजॉल्व, ठीक है, और या तो आप यहाँ पे ओपन को जाके इसको रिजॉल्व क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। एक चौथा ऑप्शन है जब आप रिप्लाई कर रहे हो किसी को, तो रिप्लाई एंड रिजॉल्व, ठीक है, रिप्लाई एंड रिजॉल्व, तो चारों तरीके से आपके रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही रिजॉल्व होगा, हियर कम्स योर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट व्हिच वी डिस्कस्ड विद who we had a conversation earlier। जैसे मैं यहाँ पे रिजॉल्व करता हूँ, इसके पहले के रिक्वायरमेंट थी, जैसे टिकट रिजॉल्व हो गया है, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, प्लीज रेट योर सेटिस्फेक्शन विद द योर रिक्वेस्ट। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर, आई एम जस्ट राइटिंग इट, नॉट सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, एंड नॉट अप टू मार्क, ठीक है, ठीक है, और मैंने इसको सबमिट कर दिया। ये आपका सीसेट एनपीएस दोनों में काम आ जाएगा। हाँ, मतलब मेरा आईटी मैनेजर अगर किसी को लैपटॉप सप्लाई करता है, वो चलता नहीं है,
तो तुरंत वो बोल सकता है कि मुझे लैपटॉप तो मिला बट आई एम नॉट हैप्पी। एक क्वेश्चन और था, जैसे मान लो कोई मेरे काम से सेटिस्फाइड नहीं होता, हाँ, उसको हाँ। लगता है कि हाईलाइट करना आगे अब जो मैंने ऑप्शन है। सीसेट है। का जो रिस्पांस करा है वो और टिकट अगर मैंने मुझे किया लगता है वो चीज़ मेरे पास नहीं आगे जानी चाहिए, जैसे आपके वो पास टिकट जानी में चाहिए। यहाँ पे दिखेगा, देखिए कर सकता हूँ। ये टिकट सॉल्व हो गया, यहाँ दिख रहा है आपको जी जी जी। 1 रेटिंग मिली थी हाँ और जी। यहाँ पे क्लिक आ गया रिस्पांस वाज नॉट अप टू द मार्क। ठीक है। वो तो सब- ये मैं हर रिजॉल्व टिकट्स पे देख सकता हूँ। हाँ। अगर मुझे बल्क में देखना है तो मैं एडमिन में जाऊंगा। हम्म, एडमिन में जाने के बाद मैं डेस्क सिलेक्ट करता हूँ और मैं जाता हूँ सर्वेज में। हम्म, सर्वेज में मैं जाता हूँ सर्वे रिजल्ट पे हम्म, और उसके बाद जाता हूँ फीडबैक। पहली बात तो सीसेट आपका ये है हम्म, 91%, हम्म, ठीक है। सर्वे रिस्पांस, टोटल इनविटेशंस, सारी चीजें आपको दिखती है। उसके बाद फीडबैक। हाँ, तो जो मेरा फीडबैक है वो मैं उसको, ये देखिए यहाँ पे आ गया, हम्म, वेंकटरमन सुयोग जैन, वन रिस्पांस वाज नॉट अप टू द मार्क। हम्म, आप अगर चाहे तो एक टीम इसकी बिठा सकते हैं जो कि सिर्फ सर्वे पे काम करेगी हम्म, कि मेरे यहाँ पे जिसको भी 2 रेटिंग 1 और 2 रेटिंग मिली है मैं डायरेक्टली वो टिकट ओपन कर सकता हूँ यहाँ से जाके, ठीक है, और यहाँ से जाके मैं वापस से उस पर्टिकुलर चीज को इनिशिएट कर सकता हूँ कि व्हाट वेंट रॉन्ग। ठीक है। ठीक है, तो ये तो हो गया सर ईमेल केस। सिमिलरली अगर कोई आपको व्हाट्सएप करता है, मैं आपको व्हाट्सएप करके दिखा देता हूँ। वो तो बढ़िया था। व्हाट्सएप पे हम सर्वे भी कंडक्ट कर सकते हैं ना? हाँ, सारी चैनल पे आपके सर्वे देख सकते हो। ठीक है। मतलब लोग हमारे कस्टमर केयर के व्हाट्सएप पे अगर कुछ भेजते हैं, वेबसाइट पे भी बॉट के साथ हम वही व्हाट्सएप को लिंक कर देंगे। करेक्ट, यहाँ पे लिख दिया मैंने हेलो टीम। ओके बॉट स्टार्ट हो गया ऑटोमेटिकली। ओके, ठीक है। व्हाट कैन आई हेल्प यू विद। ओके। ऑप्शंस आ गए, ऑर्डर ट्रैकिंग, एडिटिंग ऑर्डर, ऑर्डर कैंसिलेशन। तो लेट्स से एडिटिंग ऑर्डर पे क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। और ये जो मेरे मैसेजेस चल रहे हैं ये देखिए इधर ऑटोमेटिक आ रहा है। अब ये जो मेरे मैसेज चल रहे हैं ठीक ये है। ऑलरेडी मेरे एक पर्टिकुलर बॉट सेट जो कर रखा है उसमें चल रहे हैं। तो मैं जो भी यहाँ पे बात कर रहा हूँ हेलो टीम, ठीक है, ओके। ये सारी मेरी बात चल रही है। मैं इसको चाहूँ तो ओपन इन केस यू करता हूँ, बट अभी मेरा बॉट हैंडल कर रहा है इसलिए मुझे हाथ नहीं लगाना है। ये ऑटोमेटिक किसी को असाइन हो जाएगा हाँ, जैसे केस क्लोज होगा। ठीक है, ठीक है। राइट, तो नो कर दिया मैंने, एंड नो प्रॉब्लम, कीप शॉपिंग विद अस। ठीक है, ये हो गया है। मतलब और इसके बाद ये बॉट ने हैंडल particular- कर लिया उसको। हाँ, ये बॉट ने हैंडल कर लिया है। तो बॉट इसको अब क्लोज मैं यहाँ पे क्लोज भी कर कहूँगा- देगा अपने आप। हाँ, ये देखिए ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो गया। ठीक है, डन, वेरी गुड। ठीक है, अगर आपको option कुछ हो भी तो नहीं करना हमें है ऑप्शन इसके। मिल जाएगा यहाँ पे। हाँ, नहीं, आपको बॉट जैसे भी सेट करना है आप सब हाँ, तरीके से बॉट कर सेट सकते कर एक बोर्ड से इनको चैट करवाओ और बोर्ड से अनसेटिस्फाइड कर दो एक बार, बोर्ड ना करके नहीं, बोर्ड रिजॉल्व ना करे हम बॉट अगर रिजॉल्व नहीं करता है तो वो केस फॉरवर्ड हो जाएगा किसी और का ना। हाँ, तो हम उसके अंदर एक ट्रिगर लगा सकते हैं, जैसे हमने करके दिखला ट्रिगर लगाया था। मैं आपको चला के दिखाता हूँ आईटी डेस्क में। अभी क्या मैं थोड़े दिनों से छुट्टी पे था तो मैं भी चीजें इधर उधर हो गई थी। देखिए ये मैं इंटरनली जो मैंने सेट कर रखा है जी। वो सारी चीजें चल रही है। ठीक है, ऑर्डर कैंसिलेशन, ये जो साइड में आपका चल रहा है ये आपकी ऑर्डर आईडी मांगेगा, जैसे मेरी ऑर्डर आईडी तो ये सारी डिटेल यहाँ राइट साइड में आती आएगी। सोफा बेड कुशन्स ordered by mistake, what do you want to refund preference, credit to wallet, ठीक है, this has been cancelled successfully और payment will be reflected। अब मान लीजिए यहाँ पे कस्टमर इसके बाद कुछ लिखता ही नहीं, select your refund preference, तो हम कस्टमर को एक मैसेज डाल सकते थे, we have not received your input, please reply otherwise the ticket will get closed within some time। ठीक। सॉरी सर, जिन लोगों को बैकएंड देखना होगा ये सारा, they must have ID password purchased, right? करेक्ट। सो यूजर वैसे ही डिफाइन होते हैं। सो अभी हम कस्टमर सर्विस की बात कर रहे हैं सिर्फ, राइट? आई एम श्योर आप जैसे अभी आईटी डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो ये सारी लोकेशंस पे आपके हार्डवेयर्स भी होंगे जहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी आईटी टीम इन्वॉल्व होगी ये टिकट सॉल्व करने के लिए। जी।
राइट। तो हम उसके अंदर एक एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ आपको मैं। तो जो आपको ये दिख रहा है, ई कॉमर्स, आईटी, माई बैंकिंग, माई बुकिंग, जी जी। राइट, these are nothing but my internal department within my company. ओके, So the you can tickets are have getting customer support allocated to department. these people based on the nature, and these people are logging into, and from backend they are resolving the issue. तो लेट्स से ई कॉमर्स हो जाता है आपका कस्टमर सपोर्ट डेस्क, आईटी डेस्क हो जाता है आपका इंटरनल आईटी डेस्क, हम्म माई बैंकिंग हो जाता है आपका एचआर डेस्क, हम्म राइट। हम्म अब हर डेस्क जो है, हर डेस्क की सेटिंग्स जो है वो सब अलग अलग है। ओके। सो आईटी डेस्क वालों के लिए जो support@quickclean.com होगा, IT support@quickclean.com, जबकि एचआर वालों के लिए होगा HR@quickclean.com। हम्म और जब आपको टिकट आएंगे अब आपको दिखेगा। तो ये देखिए, ये कलर टैग्स आपको दिख रहे हैं, जी। तो इसे हम बोलते हैं डेस्क। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि आईटी डेस्क के टिकट्स कितने हैं, एचआर डेस्क के टिकट्स कितने हैं, कस्टमर सपोर्ट डेस्क के टिकट्स कितने हैं। और क्योंकि मैं सुपर एडमिन हूँ, मुझे ये सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं जी। बट एक बंदा है जो कि सिर्फ आईटी टिकट्स दिखना चाहिए उसे, तो मैं फिर एडमिन में जाके, यूजर में जाके उस पर्टिकुलर यूजर को एक पर्टिकुलर डेस्क असाइन करूंगा। इसका रोल जो है वो एजेंट का है, और एजेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर डेस्क देख सकता है, और वो डेस्क में भी उसको ईमेल केस दिखेंगे, फोन केस दिखेंगे, बाकी और कोई केस नहीं दिखेंगे। तो मुझे चार्जेस किसके देने होंगे, सुपर एडमिन के देने होंगे या फिर एजेंट के भी देने होंगे? यूजर्स के। तो एजेंट हो, अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर हो, सुपर एडमिन हो, वो सब हम यूजर ही काउंट करते हैं उसको, उसके लिए अलग कोई सेपरेट चार्जेस नहीं। अच्छा, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने कस्टमर केयर के लिए एक यूज़र आईडी लिया और आपने उसको 2500 में पर मंथ हमको दिया पर यूज़र, तो शी विल बी एबल टू सी वाट एवर यू आर सीइंग राइट नाउ। अगर उन्होंने आईटी वाले को ऐड करा तो उसका भी हमको 2500 फिर से देना पड़ेगा, हाँ जी, ताकि वो भी बैकएंड देख के फिर टिकट रिजॉल्व कर सके। वो बंदा आईटी के टिकट देखेगा। अच्छा, हाँ। और जनरली हमारे कंपनी में मैक्सिमम इश्यूज जो आते हैं वो एचआर से रिलेटेड, मतलब इंटरनल आते हैं, कस्टमर्स के आते हैं। कस्टमर के लिए मान लो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, इंटरनल एचआर से रिलेटेड सैलरी, पीएफ वगैरह सब कुछ आता है, प्लस आईटी से रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड आता है। थर्ड है टेक्निकल सर्विसेज इंजीनियरिंग के मामले में आता है। तो यू आर सेइंग दैट एटलीस्ट 3 यूज़र तो होने चाहिए। मेरे हिसाब से आप 5 यूजर लीजिए, उसके अच्छा। अंदर आपके चारों फंक्शंस तो कवर हो ही रहे हैं। हाँ। तो एक जो है वो आपका सुपर एडमिन रहेगा, जो कि आप रहेंगे, मतलब 4+1 हो जाएगा। हाँ, मतलब 5 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आगे जब हम जाएंगे इस पर्टिकुलर डेमो में आपको समझ में आएगा मैं 5 क्यों बोल रहा हूँ। हाँ। अभी तो ये 4 जो डेस्क में आपको बता रहा था, ये आपके 4 डिपार्टमेंट हो गए। ठीक है। हर डिपार्टमेंट में एक एक बंदा हो गया जो कि सेंट्रल लोकेशन से सारे टिकट्स देख रहा है, हाँ, राइट। हाँ। अब इसके आगे जब आप एज अ बिजनेस ऑनर, जब आपको चाहिए कि यार मेरे कौन से डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, कम्युनिकेशन कैसे हो रहे हैं, नहीं वो तो मैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को बोल दूंगा ना कि तुमको ये रिपोर्ट निकाल के देनी है। वो आप उसको भी बोल सकते हैं, लेकिन कैसा है ना सर, हाँ। यहाँ पे आपको फिर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को सुपर एडमिन राइट्स देना पड़ेंगे। ओके। और आई एम नॉट सेइंग, बट दिस इज समथिंग वेयर अ लॉट ऑफ टाइम्स देयर आर ब्रीचेस, यू नो, इन सिक्योरिटी, कस्टमर डेटा लीकेज, ये सारे कंसर्न्स रहते हैं। ओके। तो जब आपको ये सारी चीजें चाहिए तो आप सिर्फ डिस्कवर मॉड्यूल पे जाइए, ठीक है। सारी की सारी रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक बनी हुई, पाई चार्ट्स, आपके हीट मैप्स। एक सेकंड में इसको रिसेट कर देता हूँ। हम भी चाहते हैं कि वी मेक यू दैट मच इनेबल्ड कि आपको हर छोटी चीज के लिए हमारे पास नहीं आना पड़ रहा है। एंड वेयर आवर यू नो नेक्स्ट यूएसपी कम्स इनटू द पिक्चर, हमारी सर्विस जो है वो टॉप नॉच है। आपने मार्केट में सुना होगा जो नाम बहुत अभी सर्विस के मामले में खराब है, स्पेशली प्लेटफॉर्म एक बार दे देते हैं आपको, लेकिन प्लेटफॉर्म बिकने के बाद
उनका जो सर्विस है वो 24 आवर्स, 48 आवर्स, 7 डेज, 15 डेज, नहीं, ऐसे केस में हम तो ऐसे केस में फिर हमने एक्चुअली फिर नमस्ते भी कर देते हैं तुरंत। करेक्ट, तो वो आपको नमस्ते न करना पड़े, इसलिए हमारा जो सर्विस है वो टॉप नॉच है इस मामले में। तो ये मैं आपको दिखा रहा था कि आपकी जो रिपोर्ट्स है सारी की सारी एक्सपोर्ट भी हो जाती है, राइट, और आपके सारे के सारे यूजर, सिस्टम, बाय चार्ट, ग्राफिकल एनालिसिस भी है आपके पास, सब मिल जाएगा, टॉपिक एनालिसिस, डिपार्टमेंट वाइज भी आ जाएगा ना, जैसे ऑपरेशंस की कितने टिकट ओपन थे, उसका टर्न अराउंड टाइम क्या था, वो भी आ जाएगा। करेक्ट। चैनल मैंने ले लिया, ईमेल, ठीक है, लॉगिन आवर और फिक्स लॉगिन आवर, उसके बाद ई कॉमर्स हो गया मेरा, शिफ्ट बनाते हैं ना डिपार्टमेंट कि भाई तेरी 9 से 6 की शिफ्ट है, ऐसा नहीं कभी भी आ रहा है कभी भी। ई कॉमर्स डिपार्टमेंट में मेरी जो कैटेगरी है नहीं समझे, वो है रिटर्न एंड रिफंड। अभी शिफ्ट कराने देते क्योंकि रिटर्न एंड हमारे रिफंड, पास शिफ्ट की जरूरत नहीं अभी है कि नहीं वो पूछ रहा शिफ्टिंग मतलब तो क्या? आपको ये दिख यूजर जाएगा लेने पड़ेंगे, एनी टाइम है उतने यूजर ले लो, राइट। हूं। चलो देखते हैं। 2 न्यू केसेस, 63 रिजॉल्व केसेस है। हाँ एवरेज हैंडलिंग टाइम जो है उसका 11 मिनट, फर्स्ट रिप्लाई टाइम इज 5 आवर्स 22 मिनट्स, हाँ। एवरेज फर्स्ट रिप्लाई टाइम इज 4 आवर्स 4 डेज 22 आवर्स। एस्केलेशन कितना है, अनरिजॉल्व कितने हैं, रिपोर्टिंग टारगेट कितना दे है। सकते हैं हम। अब इसके बाद सही है। रिटर्न एंड रिफंड जो हुआ है उसमें डैमेज प्रोडक्ट के कारण रिटर्न एंड रिफंड कितना हुआ है, ठीक है। तो मैं वो भी सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। उसके बियॉन्ड आपको जाना है, ये सारी चीजों के बाद मेरे टोटल केसेस जो है उसमें से रिजॉल्व कितने हैं, तो दैट इज 50 आउट ऑफ 50, ये दिख रहा है यहाँ पे। अब इसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, तो जैसे मुझे पता है रिटर्न एंड रिफंड कैटेगरी में मेरे जो ये है 8 लोग काम करते थे, ठीक है, राइट। तो सुयोग जैन ने और शैनन स्मिथ ने मिलकर कितने केसेस सॉल्व किए हैं। हाँ, मतलब बंदे का हम परफॉर्मेंस देख सकते हैं हर बंदे का। आपको बाल की खाल भी निकालनी हो सर, आप निकाल दोगे। जो भी चीजें यहाँ पे नहीं दिख रही है, हाँ। आप सेटिंग्स पे जाएंगे, हाँ उसके बाद एडिट लेआउट करिए। हाँ। अब इसमें आपको क्या करना है, आप इसके साथ और जितना प्ले करना चाहते हो उतना कर सकते हैं। आपको रिपोर्टिंग कितनी चेंज करनी है, आपके हिसाब से कैसी रिपोर्ट्स बनानी है, वो सब हम भी आपको बना के देते हैं। ये सारी जो चीजें आपको दिख रही है प्री डिफाइंड आएगी सिस्टम्स में जी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बट बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट्स, लेट्स से केपीआईज एडिट, तो मैं एडिट करूंगा केपीआईज में क्या क्या आना चाहिए। तो मुझे वन टच नहीं चाहिए, मैंने वन टच हटा दिया, तो अब मेरा वन टच नहीं दिखेगा वहाँ पे, ठीक है। एस्केलेशंस दिखाना है, मुझे नहीं दिखाना है, तो मैं एकदम लिमिटेड इंफॉर्मेशन भी देख सकता हूँ। हाँ, और बहुत ज्यादा मुझे डिटेल में जाना तो कोई टिकट अगर है तो कितनी बार रीओपन हुआ है ना, वो भी हो सकता है। हाँ, वो भी दिखेगा, वो टिकट कितनी बार रीओपन हुआ वो यहाँ से ठीक दिखता है, ठीक है। हाँ, मैं किसी एक थोड़े नीचे वाले केस में जाता आपने किसी के वेबसाइट पे ये चैटबॉट लगाया हुआ है, कोई एग्जांपल दिखाओगे? चैटबॉट सर एज सच हमारे जो मेजर कस्टमर्स है उनके जो यूज केसेस है वो मेजरली होते हैं ईमेल, फोन कॉल्स एंड व्हाट्सएप। अच्छा, वेबसाइट पे चैटबॉट अगर लगाएंगे तो आप भी लगा देंगे ना फ्लोटिंग वाला? हाँ, मतलब मेरे लिए देखिए, अभी मैं आपको बताता हूँ चैटबॉट लगाना कितना इजी है मेरे लिए। मैं कोड ई कॉमर्स में गया, हाँ कोड डाल चैट में गया, हाँ ठीक है। हाँ चैट में जाने के बाद मैंने थीम सिलेक्ट कर ली, ठीक है। लेट्स से फ्रेशिज़ो, ठीक है। और यहाँ स्क्रिप्ट पे आ गया। हाँ, ये बस स्क्रिप्ट मैंने कॉपी करी हेडर और में मेरे वेबसाइट के हेडर में डाल दिया। बस बस बस, ठीक है, ये फ्लोट होता ठीक है। रहेगा। अब वेबसाइट के हेडर में जैसे ही जा रहा है ये, ठीक मैं आपको है। यहाँ पे चला के भी दिखा देता हूँ, इधर है बॉट, ये बॉट। है। तो मैंने HTML फाइल्स बना के रखी है। ठीक है, जैसे ही मैंने ये ओपन करा, ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको दिखेगा ये ऐसा है, वी आर ऑनलाइन स्टार्ट द चैट। ठीक है। ये अपना थीम भी लगा सकते हैं। आप जैसे इसको स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने इस पे क्लिक करा, हाँ अभी आप देखिए मुझे यहाँ पे आ गया। हाँ, इनकमिंग चैट एक्सेप्ट, मतलब हमारा कस्टमर केयर इनकमिंग चैट तुरंत एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपको मैनुअल रखना है तो मैनुअल रखिए, आपको हाँ। ऑटोमेटिक रखना हो ऑटोमेटिक रखिए। जी, यहाँ पे लिख सकते हैं हाय, ओके, यहाँ पे दिख रहा है हाय, चीज करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट, यही चाहता था मैं बस। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है सारी चीजें। अब इसमें भी एक और चीज है, आपको ये करते करते आपको टाइप वाला गेम नहीं खेलना है। अगेन आप यहाँ से स्मार्ट रिस्पॉन्स खेलो। हाँ, स्मार्ट रिस्पॉन्सेस, क्या? सिलेक्ट दिस दैट वगैरह, अगर Yes, नहीं है yes. तो वुड यू लाइक टू कनेक्ट द ह्यूमन,
तो फिर वो आ जाएगा, फिर उसके प्रेजेंटेशन अच्छी रहेगी। ट्रांसफर हो यहाँ जाएगा। से हो जाएगा। Correct. हाँ मतलब कस्टमर केयर को ट्रांसफर और हो जाएगा इसमें chat। सारी ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। हम्म। आपको एक चैट में आपके मैनेजर को ऐड करना है, हाँ। आप यहाँ से अपने मैनेजर को ऐड कर लो। हम्म। आपको आपके यूजर के साथ वीडियो कॉल करना है, ऑडियो कॉल करना है, सारी चीजें आप कर सकते हो। इसके बाद आपको एक चैट को केस फॉर्म में ओपन करके देखना है। आप ये नंबर पे क्लिक करो बस, तो टिकट तैयार हो जाएगा। इधर आपका एक केस ओपन हो गया। ठीक है। अब एक वंडरफुल फीचर दिखाता हूँ सर आपको। मैं आपको कॉलिंग वाला फीचर दिखाता हूँ एक। ठीक है। ऑल्दो आपके लिए कॉलिंग से ज्यादा अच्छा मैं एक काम करता हूँ आपको व्हाट्सएप वाला टिकट जो अभी हमने बनाया था। तो जैसे कोई कस्टमर का मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज आता है, राइट? अब व्हाट्सएप मैसेज के साथ साथ कस्टमर बोलता है कि मेरी जो भी आपके साथ बात हुई है ना, आप एक काम करो, मुझे नहीं सब तो मेरे को नहीं लगता इतना कोई रेलेवेंट रहेगा, राइट? तो मुझे ये विंडो नहीं छोड़ना है, मुझे जीमेल ओपन नहीं करना है, मुझे सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, ईमेल प्लस। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर्टिकुलर मैसेज के अंदर ही आपका ईमेल क्रिएट हो जाता है। आप उनसे पूछ लो सर आपका ईमेल आईडी क्या है, तो ये मैंने डाल दिया। जैसे मैं ये वाला ईमेल डालता हूँ अभी, चलिए। तो हमारी बात हो रही है अभी एंड अरे मैंने सेंड कर दिया। ठीक है। अभी क्या हुआ, यहाँ मेरी व्हाट्सएप पे तो बात हो ही रही थी, हाँ। ठीक है। साथ ही साथ में मैंने जो बात करी है, जो मैसेज करा है कस्टमर को, वो यहीं पे लॉग भी हो गया। ठीक है। ठीक है। और वो वाला ईमेल मुझे यहाँ पे आ भी जाए। कभी कभी ये सर्विस स्लो रहती है व्हाट्सएप की। ठीक है। बट तो इसमें मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपका ईमेल, व्हाट्सएप, फोन कॉल्स, मैं ना आपको फोन कॉल भी करके दिखा देता हूँ। लैपटॉप भी चाहिए होगा। हाँ। ठीक है, Okay. थोड़ा इनको बोलो तो कि फास्ट है। मैं यहाँ से कॉल करता हूँ, यहाँ फोन आता है। तो जैसे चैट आ रहा था वैसे फोन भी आ रहा है। ठीक है, मतलब फोन कॉल भी इंटीग्रेट हो जाएगा। हाँ, अगर आप फोन कॉल इंटीग्रेट करना है तो आप फोन कॉल भी इंटीग्रेट कर सकते हो। हाँ, वैसे जरूरत तो नहीं पड़ेगी हमें इतनी। बट स्टिल बट ये ऑप्शन भी अवेलेबल है हमारे पास। अवेलेबल है विद इन दैट सेम कॉस्ट। रिकॉर्डिंग होगी इस कॉल की? नहीं, नॉट इन द सेम कॉस्ट। हाँ। पूछ लो। लाइक आई सेड कि आपको उसके लिए थर्ड पार्टी सर्विसेज लाना हाँ, वो 10,000 बोला था आपने। ये दिख रहा है WTG क्लाउड प्योर। हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छा, ठीक उसके है। पास होगी रिकॉर्डिंग, इसलिए नहीं करेंगे। ठीक है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे नहीं, मुझे अभी जरूरत नहीं है इसकी। टाटा एयर IQ ये सब। करेक्ट करेक्ट, मुझे आवश्यकता नहीं अभी फिलहाल। अभी बढ़िया नहीं, चीज़ है। हाँ बट अच्छी चीज है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये छोटा सा ब्रीफ है सर। हाँ, बहुत 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 बड़ा है।